your hands down. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ Alina Sen, leaving Meher was your biggest. So hello everyone, Razia Mashkoor, India International Film Festival of Boston, and we are very fortunate that after pandemic in 2 years, we are so lucky that we received almost 48 films. हम लोग ये सोच रहे थे कि हमें शायद इस साल फिल्म नहीं मिलेगी क्योंकि लास्ट ईयर भी इतनी फिल्में नहीं बनी हैं, मगर वी आर सो थ्रिल्ड टू हैव 48 फिल्म्स एंड all are really good, but some films touches my heart, and this is one of them. Am I next? So सबसे पहले मेरी जो छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेबी बैठी हैं, अनुष्का, इतना अच्छा आपने काम किया है बेबी, आप सच्ची बता रही हूँ, यू टचेस माई हार्ट विदाउट सेइंग एनी सिंगल थिंग. और अगर मैं कह रही हूँ कि एज अ सेंसेशनल ऑफ यंग आर्टिस्ट, एज अ यंग आर्टिस्ट, यू आर सुपर्ब इन द मूवी. मतलब बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि आपने कोई कुछ बोला नहीं है, माने देयर इज नो डायलॉग, but आपका face expression is expressing your feelings, which is the good. मतलब इस बहुत मंझे हुए कलाकार में जैसी चीज होती है ना, वो आएंगे करके चले जाएंगे. You did it well. So congratulations for doing this movie at this level. You did. Thank you so much. This you have no idea how much this means to me, because this film is very close to my heart. All credit goes to Rahat sir, because he is the one who helped me do this role. This role is like I've been an actor since I was 9 years old, and it's been 10 years now, but this film was very challenging as an actor, as a human being also, because आप इतना डूब जाते हो, you know, you become so involved in a character, so you kind of, I was going through what this character was going through. I could understand the pain, or I could understand the suffocation what this character was feeling at that time. All credit to Rahat sir and the entire team. In fact, they were very helpful. They used to make sure that after I'm done with my shot, I just cut to, you know, become the me joyful Anushka, and then also switch to my character at the same time. But thank you so much, Razia ji, for you know, all your words, because as an actor it's really motivating to hear something so big from you. मतलब I'm not saying just for saying. I really mean it, because I saw the expression on your face and I said, oh my God, she is so young for this role, and she I mean, she's doing great. The story you carry on your shoulder entire film, so that is really good to see कि हमारे पास इतना अच्छा talent है like you. So we are blessed, of course we are blessed, and I'm sure कि you will be our next generation's top star. I can see it now. Wow, that's so big. Thank you so much. I'm so humbled. And I have a good eyes, I tell you. I have really good eyes, and you will see after a few years.
सो Thank you. और भी हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, राहत यहाँ है, मोनिका है, पंकज है, राजीव है, और शायद अभी हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ने वाले हैं। जो ये टॉपिक है रेप का, ये अब हमारे यहाँ इंडिया में नॉर्म बनता जा रहा है, यानी एवरी सेकंड थर्ड वीक हम एक केस सुन लेते हैं, एंड women is always suffering, whatever happened with them. So being a man, या 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो being a man, आप इस कल्चर को जो I mean it's not good to say is a rape culture, but it is because it is happening every day or every second day. मेरी योगिता बेयाना से बात हो रही थी, जो दिल्ली में इस तरह के केसेस को हैंडल करती है। वो कह रही थी कि ये 3 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद तो सिर्फ मीडिया में आता है। There is rape in every hour in Delhi, every hour, जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। कितने फोन दिन भर में हमें आ जाते हैं कि यहाँ ये हो गया। सो बीइंग अ मैन, आप इस बढ़ते हुए कल्चर को कैसे देख रहे हैं? राहत, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आपने फिल्म डायरेक्ट की है, तो आई एम श्योर कि आपने रिसर्च भी की होगी इस पर कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये जो कहानी है ना, ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, और इसकी जो स्टोरी लेकर आई थी, जो ओरिजिनल राइटर है कृतिका, उन्होंने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मैं हिल गया पूरी तरह, बिकॉज वी ऑल हैव विमेन इन आवर लाइफ, वी हैव आवर मदर्स, आवर डॉटर्स। मैं इस बारे में बात करते भी इमोशनल हो जाता हूँ कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है घर में, या मेरी मदर है। किस तरह की सिचुएशन होती होगी जब किसी लड़की का रेप होता है, किस तरह से मतलब पूरी फैमिली जो जिस हाल में चली जाती है, और जो सीन्स में हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, वो मोमेंट कि फादर है, फादर डॉटर से कैसे बात करेगा, जब क्योंकि ये इतना बड़ा एक तरह का रेप, एक मतलब एक क्राइम तो है ही, बट एक टैबू भी उसके साथ इतना बड़ा जुड़ जाता है, बीइंग अ वुमेन, एक लड़की के साथ, कि मतलब आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या करो। और हमारी कंट्री में या हमारे एशिया में या आई थिंक दुनिया भर में रेप बहुत ज्यादा होते हैं, और उसके लिए हम लोग कुछ दिन बैठ के बातें करते हैं, न्यूज में आ जाता है, हो जाता है, लेकिन उसके बाद बेसिकली द बेसिक नीड इज टू एजुकेट मेन, विच इज जो हमारे कल्चर में बहुत कम है। हमारे यहाँ लड़कों को सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, हमारे यहाँ लड़कियों को सिखाया जाता है। जो हमारी फिल्म में एक डायलॉग है पंकज जी का, जो फादर का, वो कहता है कि तुम मैंने गलत किया था जब तुम छोटी थी, तुम एक जगह स्कूल जाती थी, रास्ते में तुम्हें कुत्ते छेड़ते थे, तो मैंने तुम्हें कहा रास्ता बदल दो। तो बेसिकली हमें अपनी बेटियों को रास्ते बदलने के लिए नहीं कहना चाहिए, हमें अपने बेटों को, भाइयों को ये सिखाना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। जब तक वो चीजें हमारे स्कूल में, मुझे नहीं लगता, मैंने भी पढ़ाई की है, कोई ऐसा कोई सेशन नहीं होता है, कोई ऐसी क्लास नहीं होती है जहां पर स्पेशली हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हाउ टू रिस्पेक्ट लाइक ईच अदर जेंडर, ये कहीं एक दूसरे हमें पढ़ाया जाए। हम सिर्फ किताबों तक रह जाते हैं। हमें जो मॉरल वैल्यूज हम जो कहते हैं, बट मॉरल वैल्यूज जो लोग कहते हैं, जो ज्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी है वही मॉरल वैल्यूज का ठेका लेके चलती है, बट वो कंजर्वेटिव सोसाइटी में माँ ही सबसे पहले जो है वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देती है बेटी के साथ। जब वो बच्ची होती है, वो कहते हैं तू लड़की है, तू बाहर मत जाना, तू लड़की है, तू सर नंगा मत करना, तू छोटे कपड़े मत पहनना। तो इट स्टार्ट्स देयर। आई थिंक देयर इज अ नीड ऑफ लाइक एजुकेशन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, स्पेशली फॉर द बॉयज। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। राजीव जी, आपका क्या टेक होगा इस पर? अनम्यूट कीजिए प्लीज, आप अनम्यूट। हेलो एवरीवन। हेलो गर्ल्स जी। या गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, मेरे लिए आसान नहीं था ये जो कैरेक्टर मैंने फिल्म में पोर्ट्रेट किया है। बिंग मैन, मैं कहीं ना कहीं मुझे वो कैरेक्टर प्ले करना था, बट अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान होता था। मेरे लिए आसान नहीं था वो सारी चीज़ें। जैसा हमारी सोसाइटी के बीच में ये जो कल्चर, जैसे आपने बताया, डेफिनेटली वो जिस लेवल से, जिस तेज़ी से ये बढ़ता जा रहा है, तो भी एक बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बन रहा है। अगर इस पे स्ट्रिक्टली कोई एक्शन न लिया जाए, लोगों को एजुकेट न किया जाए, पर्टिकुलरली जो मेन सेक्शन है उसको एजुकेट न किया जाए, क्योंकि हर एक फैमिली में बेटियां हैं, बहन है, माएँ हैं, मेरी भी बेटी है, तो बड़ा मुश्किल होता है। आजकल बेटी जब घर से बाहर जाती है, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, स्कूल जा रही है,
तो मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं कि क्या मतलब वो सिक्योर है, हम तो घर में सिक्योरिटी दे रहे हैं। और आजकल तो आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि एक लड़की अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो बेस्ट वे जो है वो मैम इज ओनली एजुकेशन। एजुकेशन ही इस चीज से छुटकारा दिला सकती है। अदरवाइज आप बताएं कि कोई लॉ है या कुछ ऐसा जैसा तो कुछ दिख भी नहीं रहा हमारे यहाँ, तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है। तो द ओनली थिंग इज टू एजुकेट पीपल कि यार ये जो चीजें हैं मेंटली उनको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस बारे में। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है, फ्यूचर तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हमने फिल्म के द्वारा सिर्फ यही कोशिश की गई है कि पेरेंट्स हैं उनको भी अपने बच्चों को एजुकेट करना है, प्रॉपर एजुकेट करना है, और अपने सराउंडिंग में जितने भी उनके एसोसिएशन हैं, उनके लोग जो उनके साथ जुड़े हैं उनको भी एजुकेट करना है। तो ये मैन टू मैन एजुकेशन है मैम, वैसे ही हो पाएगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी आपका क्या टेक होगा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जब राहत जी ने ये मेरे को बोला कि आपको ये कैरेक्टर करना है, हनी जो कैरेक्टर है अनुष्का ने प्ले किया उसके फादर का, तो जाहिर सी बात है मतलब एक तो इसमें बहुत सारा वॉइस बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। हेलो, नहीं ओवरऑल मैम सभी की मुझे बहुत कम आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी 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 थोड़ी डिस्टर्बेंस लग रही है। कहीं बाकी लोग अगर अनम्यूट कर लें तो दैट विल बी ग्रेट। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी आपकी आ रही है। आई थिंक कहीं से नॉइज आ रही है। आप लोग सब अनम्यूट कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा फिर। जी हाँ जी, अब ठीक है जी जी। लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम है। आई थिंक कोई किसी का ऑन है, अभी ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं शायद इसलिए हो रहा है। हाँ। हेलो हेलो। हाँ, तारिक भाई हैं ये तो। जी हेलो, अब ठीक है? जी अभी ठीक है। अभी आप जी बताएं। हाँ जी, मैं ये बोल रहा कि जब राहत भाई ने ये मेरे को कैरेक्टर बताया कि आपको ये कैरेक्टर करना है हनी के फादर का, जो कि एक रेप विक्टिम है और उसके साथ मतलब जो भी हुआ, तो जाहिर सी बात है बड़ा चैलेंजिंग था। और आपका जो सवाल है कि मर्दों का मतलब क्या रिएक्शन होता है या मर्दों के ऊपर कैसे, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि मेरे हिसाब से जिसकी बेटी का या जिसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो उस मर्द का क्या हाल होता है, वो मैंने इस कैरेक्टर के जरिए मतलब उस जर्नी से गुजरा हूं मैं। और बहुत ही जैसे राहत जी ने कहा कि एक एजुकेशन की जरूरत है, मतलब बचपन से ही जैसे लड़कों को तरबियत दी जाती है कि लड़के एकदम से मतलब वो होते हैं कुछ भी कर सकते हैं और लड़कियों के लिए लड़कियों पर बंदिश है। आई थिंक उस दायरे से हमें निकलना पड़ेगा, हमारे समाज को निकलना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है जब बुनियादी बच्चों की खासकर लड़कों की ऐसी तरबियत होगी कि वो एक उस तरीके से रखा जाए, एक रिस्पेक्ट कि औरत को एक लड़की को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे हादसे कम होंगे। और वही बात है कि बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। बाकी जैसे राजीव जी ने बोला कि इतने लॉज बने हैं, जुवेनाइल एक्ट, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक बेसिक एजुकेशन। Please unmute everyone so that noise will not come. मेरा अनम्यूट है। नहीं आपका नहीं, बाकी लोगों को कह रही हूँ ना, तो वो आवाज कुछ गड़गड़ाहट आ रही है कहीं से, तो नहीं आएगी। तो हमारे पास ऑलमोस्ट पूरी टीम आ गई है। मेरा दूसरा क्वेश्चन मैं फिर दोबारा से अनुष्का के पास आऊंगी। अनुष्का, आप एक हाई स्कूलर या बहुत छोटी बच्ची जिसको ट्यूशन की जरूरत है वो बनी है, आपने जब ये रोल किया था तो आपको क्या फील हो रहा था कि मुझ जैसी जो बेशुमार लड़कियां जाती हैं उनके साथ क्या कुछ होता होगा? उन बच्चियों के लिए आपकी क्या फीलिंग है और क्या कहना चाहेंगे उस एज के लिए जिस पे आपने ये रोल किया है? अनम्यूट करो बेटा। तो जैसे मैंने कहा कि ये रोल बहुत ही चैलेंजिंग था, एंड ये रीजन यही है कि क्योंकि ये जो कहानी है फर्स्टली ये मतलब इंस्पायर्ड है रियल स्टोरी से, एंड जैसे हम डिस्कस भी करेंगे कैसे ये कल्चर है रेप कल्चर, अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर अभी भी है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब मैं वो पोर्ट्रे कर रही थी, मुझे जेन्युइनली पता चल रहा था कि कैसे क्या फीलिंग होती है, एक फैमिली के ऊपर क्या बीती है, उस लड़की पे क्या बीतती है। आई थिंक
मैं तो सिर्फ किरदार एक निभाया, पर जिस पे एक्चुअली वो हुआ होगा, वो अंदर ही अंदर उसे कितना सफोकेशन होता होगा, या कितना अजीब लगता होगा, या मतलब वो क्या करे, क्या बोले, किसको बोले, कैसे बोले, कितना अनकंफर्टेबल आप हो जाते हो अपने परिवार से। इनफैक्ट बहुत सारे सीन्स में आप देखेंगे कि वो समझ ही नहीं पा रही कि वो किसे कैसे बोले, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, बात नहीं कर पाती है, शांत सी हो जाती है। इनफैक्ट हनी, अगर आप उसकी जर्नी देखेंगे तो वो इनिशियली कितनी खुश, हंसी मजाक करते हुए एकदम नॉर्मल टीनेजर्स जैसे होते हैं, वहां से लेकर उसमें इतना चेंज आ जाता है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये किरदार निभाने का मौका मिला, क्योंकि हम इस फिल्म का बनाने का आई थिंक यही मकसद है कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस, मतलब लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। we want people to know what a person goes through when something like this happens, and it's huge, and ये रह जाता है एक इंसान के अंदर, ये कभी चला नहीं जाता। So I really want all the girls to know, मेरी उम्र के या जो हनी की उम्र के हो, या जो फिल्म देखेंगे, या जो भी ट्यूशन जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, just it's very important आप सेल्फ डिपेंडेंट रहे, और सेल्फ डिफेंस जानना कितना नेसेसरी है। एंड ऑल द गाइज ऑल्सो, जैसे सबने हमने बात की इस बारे में कि सब जितने भी लड़के हैं उन सबको एजुकेट हमें करना चाहिए, उन्हें अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। एंड इट्स जस्ट हॉरिबल कि अभी भी ये सब हो रहा है। आई रियली होप कि ऐसी फिल्म्स और बने ताकि लोग और अवेयरनेस और अवेयर हो कि ये सब नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो अभी हमारे पास हमारे विमेन पावर मौजूद है, सब लोग आ गए हैं, सौरभ जी, ममता जी, पूजा, मोनिका, रितु एंड नीलू। मेरा पहला सवाल आप में से, मैं लेट्स से स्टार्ट विद स्वरूप जी। स्वरूप जी, एक औरत जब इस तकलीफ से गुजरती है जिसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई मतलब उसका कोई वो नहीं है कि भाई वो बच्ची स्कूल जा रही है या टीचर से ट्यूशन लेने जा रही है, तो नियत उस आदमी की खराब है। हमारा समाज इसमें औरत को क्यों मतलब उसको क्यों ब्लेम करना शुरू कर देता है, और क्या ये सही है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। सही तो बिल्कुल नहीं है, पर मुझे लगता है कि सबसे पहले जो चीज बदलना चाहिए है समाज का माइंडसेट। हमारे देश में, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से, हम कितना भी कहें कि वेस्ट में जाओ, एवरीथिंग वेयर इट्स द सेम। अगर ऐसा होता नहीं होता तो बाकी देशों में भी विमेन रेप नहीं होते। बात यह है कि जब तक हमारी माइंडसेट नहीं बदलेगी, जब तक पर्टिकुलरली इंडिया में अभी भी पैट्रियार्की इज वेरी वेरी रेलेवेंट, जब तक और उसमें और एक सबसे बड़ी बात है कि पैट्रियार्की के पीछे कि हमारे समाज में अभी भी घर में बच्ची की शादी जब होती है तो पहला संतान हम लोग मेल चाइल्ड ही चाहते हैं, क्योंकि वंश को आगे बढ़ाएंगे। This is a concept we haven't gotten out of it. So जब तक ये सोच नहीं बदलेगा तब तक ये चीजें होती जाएगी। One. Secondly, दूसरी बात ये है कि अगर एक घर में लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, दोनों अगर पैदा हो, तो उसमें भी एक डिफरेंस आती है उनकी ट्रीटमेंट पे, कि एक लड़के को जिस तरीके से बड़े किए जाते हैं कि लड़की के क्षेत्र में कई सारे पाबंदियां आना शुरू हो जाती है आफ्टर अ सर्टेन एज। मैं मानती हूँ कि शारीरिक तौर पर और इन सब चीजों के लिए पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसर्न, पर एक तरफ आप लड़कियों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि आप बाकी से कम नहीं है, पर उसी की पैरों में आपने उसको क्या कहते हैं, चेन बंध के रखा है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बदलाव नहीं है, कई जगह पे कई सारे पेरेंट्स वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उनके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं क्योंकि वो बहुत ही मिनिमम है। अगर 75% हमारे मास में ये चीज बिलीव करते हैं और 25% उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं,
तो वो उनको भी कई सारी बार एक प्रेशर के अंदर डालते कि आपने अपनी लड़की को क्यों छोड़ दिया। अब देखिए ना, कहीं भी कुछ होता है कि लड़की रात में, पहला सवाल ये होता है कि ऐसे कपड़े पहन के बाहर क्यों जा रहे हैं आप, इतने रात गए क्यों बाहर जा रहे हैं। ये कोई नहीं सोचता कि क्यों हम ऐसे समाज नहीं तैयार कर सकते हैं जहां पे लोग, whether it's a man or whether it's a woman, they can travel alone on their own, they can do that safely. दूसरी बात यह है कि हम ये जो भेद करते हैं लड़के और लड़की में, I have seen there are a lot of women, others भी ये भेदभाव में विश्वास करते हैं। वो भी एक घर में एक लड़की भाई के लिए क्या करेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट डजंट मैटर कि वो बहन के लिए उतना ही करता है कि नहीं। हम रक्षाबंधन तो करते हैं, पर उसमें भी खाना पकाना होता है तो बहन को ही पकाना होता है। जी 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 जी। अब हमारे यहाँ लड़की के लिए कुछ है नहीं। जी, जहाँ पे आपने कई बार सुना है कि लड़की की आईब्रो बात हो रही है, कुछ हो रही है, जहाँ पे लड़के पका के खाएंगे या उनके काम करके करेंगे, वो तो बहुत मुश्किल है। ये वो कई तो सारे घरों में चेंज आए हैं। एडुकेटेड पेरेंट्स है, वो कहते हैं, but you know it's a cycle which is carrying on and on and on and on and on. मतलब आज के जमाने में भी हमने देखा है 3 बच्चियां पैदा करने के बाद भी वो माँ कितना ही, मतलब उसकी शारीरिक अवस्था कितना भी बुरे हो, उनको और एक बच्चा पैदा करना हो रहा है ये सोच के कि अगर लड़का हो जाए, अगर लड़का होता तो अच्छा होता। correct. In spite of the fact that we have examples of कि लड़के बाप माँ को छोड़ के चले गए, ये जो आइडियाज के अंदर हम अभी भी घुसे हुए हैं ना, और उसको ट्रेडिशन के नाम पर पकड़ के बैठे हैं, वो जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक ये चीजें चलती रहेगी। नहीं, हम कहते हैं तो औरतों ज्यादा इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है कि माइंडसेट का तो सारा खेल ही माइंडसेट का है एक्चुअली देखा जाए तो। और हम लोग फिल्मों में जब औरतों को देखते हैं हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिफिकेशन तो घर के अंदर से ही शुरू हो जाता है, पैदा होने के बाद ही। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि चेंज नहीं आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं लोग अपने अपने स्तर पर, बट इन अ लार्जर स्केल एक देश में ये परिवर्तन कब आएगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। अब सबकी कोशिशें होनी चाहिए, ऑनेस्टली अगर कोशिश की जाए तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली। सो पहले तो मैं आप सबका वेलकम करूंगी क्योंकि सारी टीम आ गई है। पंकज जी का और इन लोग का हम पहले शुरू कर चुके थे, लेकिन नीलू है, पूजा है, रितु है, तारिक है, मोनिका है और सतीश भी आ गए हैं, जेबा भी हैं। और तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन के प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलू के पास जाऊंगी। नीलू, आपने मदर का रोल किया है इसमें, तो बीइंग अ मॉम, आपकी छोटी बच्ची जो हाई स्कूलर है अभी, वो इतने बड़े उसमें आ जाती है, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी एज अ विमेन? I have a daughter, I have a 13-year-old daughter, so I could really relate to the character. And there was this one scene जहाँ पता चलता है कि बच्ची pregnant हो गई है, not knowing that she's been raped. I think हमने वो scene, I think end of the film shoot किया था because it was emotionally charged and very volatile scene. Yes, and it was a very difficult scene. Or being a mother, and I'm sure Pankaj being a father, we could really relate to the, the emotion of the character. Exactly. Yeah, it is very difficult. मतलब क्या होता है, मुझे बाकी एक्टर्स का नहीं पता, लेकिन जब मैं किसी कैरेक्टर में घुसती हूँ तो ऑब्वियसली एज एन इंडिविजुअल और एज ए कैरेक्टर आप कहीं मर्ज होते हो. So that's how it works for me. तो वो सीन करने के टाइम लिटरली पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है. किसी पेरेंट को ये पता चलना कि उसके बच्चे के साथ ये हो गया है, not knowing. And my character was such जिसको दुनिया क्या बोलेगी और लोग क्या बोलेंगे से फर्क पड़ता है. So how she tries to deal with it. And the father is very, very supportive and of the daughter, but mother wants to just
sweep it behind the carpet. Personally, I wouldn't do that. God forbid to any parent इस तरह का कुछ उनको गुजरना पड़े. पर it is a very, very difficult situation. And as Rahat and Pankaj and Rajiv, also Swarupa pointed out, the mindset बदलने की जरूरत है, which is very difficult. ये मतलब it is inbred, ये हमारे खून में जा चुका है. It is really very, very difficult. But at least we are making an effort, which is एक पहला step तो लेना ही पड़ेगा. And media से बड़ा अच्छा माध्यम कोई नहीं होता है, in my opinion. So yeah, we are hoping कि हमारी film touches the right nerve in the audience. And yeah, ये बिल्कुल schooling की it should be part of our basic education to make boys understand that we have to respect women, and to make women and girls understand that we have to stand up for ourselves. So Monica, आपने एज अ जज उसका किरदार निभाया है. आपको लगता है कि जिस तरह से विमेन को क्रिटिसाइज किया जाता है, खासतौर से जब पुलिस में जाएं या फिर वो उसमें जाती हैं, कोर्ट में जाती हैं, तो आपका क्या टेक होगा उस पर? क्या कहना चाहेंगे जिस तरह उन्हें हैंडल किया जाता है? या बिल्कुल भी विक्टिम बना दिया स्पेशली इन जाता है. इंडिया. हाँ, लाइक जैसे हम बाकी मूवीज में भी देखते हैं, वी सी डे टू डे कि औरत का पुलिस में जाना या किसी को अप्रोच करना फॉर हेल्प, they just find it so difficult. And playing the role of a judge also, it was like quite difficult for me to. And I realized that the actual law and the actual judgment you give, there's a lot of difference between justice and what is morally correct and what is legally applied. So there's so much of difference, and how we approach and how you give the judgment, and it's like the pressure built in. So as a judge, and even I've got a daughter in the movie, so in real life I have a son, but I've been 3 sisters all my life, so I know how the feeling is, and it's a difficult one. It is a difficult one. Pooja, आपने बहुत फाइट किया अनुष्का के लिए, नहीं नॉट अनुष्का के लिए, बट द किरदार जो उसमें था अनुष्का का. जिस तरह से आपका और स्वरूप जी का इंटरेक्शन है कि वो डिफेंस की हैं और आप फाइट कर रही हैं उसके राइट के लिए, तो ये जो फाइट है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर समाज का दबाव है? जो भी वकील फाइट कर रहा है उस बच्ची के लिए, उस वकील पे कहीं ना कहीं दबाव है समाज का? कौन से समाज का दबाव? क्योंकि एक समाज है जो न्याय चाहता है और दूसरा समाज है जो कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है. Exactly. जिसकी जो ये कहता है कि लड़के की गलती नहीं है, लड़की ने कुछ किया होगा, कपड़े कम पहने होंगे, बला बला बला. हाँ, उसी ने ट्रैक किया होगा. ये सारी दलीलें आती रहती हैं, की जाती हैं from the other side. Yes, there is a lot of pressure, you're right, and the pressure only makes you courage, gives you the courage and the boldness to go ahead with what the truth is. And I think चाहे आप हम जितना भी कह लें कि we have a patriarchal society, which is correct, and it's all over the world. Oh, yeah. You can't get over it, and you can't eradicate it. But of course, you can educate the men to understand that rape is something like violence. Rape is not always happening around the world, especially in India, because it's for sex. It's not. It's happening because of the power play. I think the pressure that a lawyer like Naina, that I got the opportunity to play, feels is to fight with this big group of people who don't believe that कि लड़की की गलती नहीं है, especially एक लड़की जो इतनी छोटी है. So I can understand कि
I can't understand, but if one agrees to disagree and say, okay, I understand कि कोई 30 or 40-year-old है, so there might be like उनका relationship था, but कोई छोटी सी लड़की and she gets pregnant, so the story doesn't end there, right? Rape is such a big trauma in the life of this छोटा सा 14-year-old girl who's going to take that trauma into her life, and then not just that, everything that comes along with it. So there's a lot of pressure, constant pressure when you're fighting. That's what I felt at the time of playing that role as well. All the dialogues, the script, the screenplay was gravitating towards reacting towards that pressure most of the times. Oh, so it was very interesting to feel the stress. क्योंकि आपको कन्विंस करना पड़ा है पेरेंट्स को कि you have to fight. So that will be challenging. और हमें अभी नॉर्मल लाइफ में भी करना पड़ता है. Absolutely. And लोग करते हैं, you know, there are lots of, लोग करते हैं. There are lots of lawyers out there, and hats off to them. They're doing it. It's one point. I'm sorry. I just want to add to what Pooja is saying, that you can't really blame the parents to convince करना पड़ता. The way our judiciary works and the way नहीं, because of society का जो pressure है उसकी वजह से. It's not because parents नहीं चाहते, but इसलिए क्योंकि because of the society. It's not only the society. It's not only the society, it's also how the system functions. Exactly. That's another thing. Yep. एक middle class family के लिए इन चीज को बाहर ले जाना, एक तो उनका social pressure, on top of that when they go to the system, the kind of questions they have to be faced, they feel raped, you know, the way the questions are put forward to them. Absolutely. So it's sorry not to interrupt. इसी बात पे मुझे इस फिल्म का ये एक सीन याद आ गया जब रमनदीप हनी's फादर पूजा जी नैना को अपने घर में लेकर आता है, तो नीलू जी रम्मी वो उसको देखकर थोड़ी सी मतलब गुस्सा हो जाती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों लेकर आए हो. उसने देखा क्या किया था, एक रेफरेंस देती है उस लड़की का उसने क्या किया था. तो फिर वहां पे जब वो उससे वही एक जो डर है, जो एक सोसाइटी का एक डर रहता है, वही मेरे ख्याल में पेरेंट्स को वो चीज रोकती है. अदरवाइज कौन पेरेंट चाहेगा कि उसकी बेटी को या उसको इंसाफ ना मिले. तो इस फिल्म का वही एक सीन मुझे याद आ गया इसी बात के ऊपर. तो सॉरी. मैं तारिक को लेना चाहूंगी. और जेबा, आप लोगों ने फिल्म बनाई है, आपने शायद सुना भी होगा कि अभी रिसेंटली दिल्ली में एक केस हुआ है, राबिया या साबिया जो भी नाम है उस बच्ची का, और उसके लिए पेरेंट्स को बहुत बुरी तरह से मतलब इतना प्रेशराइज किया गया है कि वो बाहर आए. तब वो 4 दिन के बाद बाहर आकर उन्होंने बात करना शुरू किया है, और वो 4 दिन में उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हम लोग जो हैं वो मर्सी किलिंग करेंगे अगर हमारी बच्ची के साथ ये सब हुआ है तो. और उन्होंने गवर्नमेंट से अपील भी कर दी थी इस बात की. तो एज अ डायरेक्टर और इस फिल्म को बनाने के पीछे जो आपका पूरा जो सोच थी, उसको आपने कैसे एक जगह लाके जमा किया है? आप दोनों में से जो भी पहले सवाल का जवाब देना चाहे, माइक इज योर्स. सबसे पहले तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि लाइक यू नो ये चीज जो है जो इतना ज्यादा, बिकॉज हम सबके घर पे बेटियां हैं मैक्सिमम लोगों के यहाँ, और जब भी वो घर से बाहर निकलती है, आज भी जैसे मेरी बेटी अब 24 साल की है, वो कहीं बाहर जाती है तो हर वक्त ये डर लगता है कि 8 बज गए, घर क्यों नहीं आई, किसके साथ है. तो वो 24 घंटे जो दिमाग में रहता है कि यार बेटियों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. The world is as such. I mean, एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगी कि जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, when she used to go for classes, तब मेरी मॉम हमेशा से मुझे यही बोलती थी कि उसको लिफ्ट में अकेला मत छोड़ो. You don't know कि कौन से फ्लोर पे लिफ्ट और वो खींच ले जाएगी, आपको भी नहीं पता होगा कि कहाँ है. तो वो जो डर हर पेरेंट्स का है, वो दिमाग में रखते कि नहीं, ये चीज से मतलब you should get aware of it कि यहाँ सिचुएशन होती है, या अगर कभी गॉड फॉरबिड किसी लाइफ में ऐसी चीजें आए तो आप टू स्पीक अप, बिकॉज नोबडी वांट्स टू टेल. जैसे किसी ने किसी को छेड़ दिया या मोलेस्ट कर दिया तो मदर्स या घर के बड़े यही बोलते हैं कि यार मत बोलो, इसमें घर की बदनामी होगी. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि नहीं,
मतलब अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया है तो आपको ये कदम उठा के लोगों के सामने उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, सो दैट नेक्स्ट टाइम दे डोंट डू समथिंग। ये सब चीजें बिल्कुल बिल्कुल। तारक, आपका क्या टेक होगा इस पर? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए होता क्या कि मैं सॉरी, हमेशा ये हम लोग सोचते हैं कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है पूरी दुनिया में जी, जिससे ना आप छोटी सी छोटी चीज लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो अगर हम फिल्म मेकर हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है, हम लोगों को चाहिए कि जो मैसेज एक आम आदमी को नहीं पता है वो हम लोगों का काम है पहुंचाना, जो सबसे बड़ी बात है। और बात करेंगे इस फिल्म के ऊपर, होता क्या है कि जैसे इस फिल्म में इस बच्ची के साथ जब रेप होता है तो ऐसे पता नहीं कितनी हजारों लड़कियां जो हमारे देश में बल्कि देश के बाहर भी जिनके साथ होता है, कोई समाज की वजह से, सोसाइटी की वजह से कभी हम लोग उसको बता नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। होता क्या है कि अगर किसी बच्ची के साथ कोई रेप हो जाए तो वो इस चीज को बताने से फैमिली, उसके मदर, उसके फादर, जैसे हमारी फिल्म में भी है कि उनको ये लगता है कि अगर सोसाइटी में पता चलेगा तो बच्चे से शादी कौन करेगा, हम किस किस को मुंह दिखाएंगे, सोसाइटी में कैसे रहेंगे। पहले तो हमें इस चीज को खत्म करना है कि ये जो रेप है अगर किसी के साथ होता है तो हमें उसकी आवाज उठानी है, ना ही उसको दबाना है। क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी को बहुत कठिनाइयों में डाल देते हैं, दोस्तों के लिए, सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, अपने राइट के लिए कभी लड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा सबसे बड़ा मकसद ये था इस फिल्म में, जो हम लोग दिखाना चाहते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं या फिर जो देखने वाले लोग हैं, जो फिल्म के माध्यम से क्या है कि आपके लाखों अरबों लोग देखते हैं कि जिसके साथ, बच्ची के साथ, किसी वुमेन के साथ, लड़की के साथ जब रेप हो, उसका पहला काम यह है कि वो आवाज उठाए और अपने राइट के लिए लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसका हक है। जी जी। मैं एक मिनट बताता हूँ, थोड़ा सा कुछ और। तो ये पहला काम है कि हम लोगों को इस चीज को लेके चलना है। सेकेंडरी में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारी जैसे मेरा कैरेक्टर था एक पुलिस का, एक इंस्पेक्टर दौड़ता है, भागता है, पकड़ता है, बट हमारे देश में, और मुझे लगता है स्पेशल हमारे देश में, ऐसे कानून है कि कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल जब चला जाता है तो वो कुछ दिनों के बाद आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे लोगों को उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि उन चीजों को थोड़ा सा स्ट्रांग किया जाए, ताकि कोई ये चीज करने से पहले 10 बार सोचे कि आया मैं, अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया, गलती की, मेरा इसका नतीजा क्या होगा। तो उन चीजों को हम लोगों को ना थोड़ा सा और अभी करने की जरूरत है, मुझे लगता है, जहां तक, क्योंकि जब तक ये चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी तो ये सब चलता रहेगा। बिल्कुल। अभी स्वरूप जी ने कहा कि सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा माइंडसेट जो है उसको तोड़ना है। सतीश, मैं रितु बहुत देर से आ रही है, रितु के पास आती हूँ। सतीश, आप भी, यही सवाल आपसे भी है कि जो कुछ हो रहा है हमारे समाज में, आप लोगों ने उसको पोर्ट्रेट किया है, तो आप बताएं कि आपकी क्या फीलिंग थी और क्या होना चाहिए इसके लिए, भी क्या बेहतर सूरत हो सकती है? हाय। हाँ, जो हमने जो दिखाया है फिल्म में कि एक बच्ची के साथ रेप होता है और उसके घर वाले पहले सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके फादर सपोर्ट करते हैं, फिर मदर करती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे समाज में, मतलब हमारे पड़ोसी ले लो, मतलब कुछ भी आपके घर में होता है, आपका पड़ोसी आपका सपोर्ट नहीं करता। क्या है कि सब अपने काम में बिजी रहते हैं, सब बोलते हैं कि क्यों इसके मतलब इसके लफड़े में पड़ना है, मतलब कुछ भी हो। तो वैसा, मतलब उस चीज को चेंज करना जरूरी है कि मतलब ये सब ना हो, रेप वगैरह, क्योंकि आखिर आपकी बहनें हैं, आपके माँ हैं, तो ये सब गलत है। इस चीज को चेंज करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और खास तौर से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस फिल्म का जो बहुत ही पॉजिटिव एक हिस्सा है वो फादर का स्ट्रांग होना है, क्योंकि जिस घर में फादर या ब्रदर स्ट्रांग होंगे उस घर की बेटी बहुत स्ट्रांग होकर निकलती है, और ये इस फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा है। मैं रितु के बाद फिर आती हूँ अनुष्का पे। रितु, आपने एज अ जर्नलिस्ट इसमें काम किया है, क्या फील हो रहा था जब आप अपना ये रोल प्ले कर रही थी कि हमारे समाज में कहाँ जरूरत है लिखने की ज्यादा से ज्यादा,
ताकि उस माइंडसेट को तोड़ा जा सके। मैंने जर्नलिस्ट के अलावा इसमें एज अ राइटर भी काम किया है। व्हेन इनिशियली आई केम टू नो कि चंडीगढ़ में एक ऐसी लड़की थी माइनर हु वाज रेप्ड एंड गॉट प्रेग्नेंट and she did not have the right to abort her child, so that is horrible कि आपका एक अपनी body पे right नहीं है। First thing is you are getting raped, you are getting eve teased. First feeling comes from there that you are very young and people are touching you, people are doing the things that you are not ready for, that you don't want. So एक वो feeling आती है inferiority की, that आपका तो अपनी body के ऊपर ही right नहीं है। The other gender overtakes there, that you are growing up, you are confused about your growth, you are confused about so many things, and then the other thing comes, you are getting raped. Okay, that is also a shock. Then you get pregnant, another shock. Then third shock is that you can't even get rid of it, and if you don't want to get rid of it and if you will deliver the baby, then samaj kya kahega, aap kahan jaoge as a family. So it's a multi-layered thing. It's not कि आप rule, आप system change करो, आप society change करो. The fear is that this is ironic that women have those fear that men don't even know they exist. Like for example, I'm coming home from the library or university or from my work. I'm walking. 2 गाड़ियां स्लो हो जाएगी, 2 बाइक स्लो हो जाएगी, 2 ऑटो स्लो हो जाएंगे, 2 4-5 लड़के स्लो हो जाएंगे. So it's just I just instantly come in the survival mode. Now where do I go? Where do I run? Who is going to serve me? So there's this panic attack suddenly. Okay. So men, so it's this fear that very few men know. तो एक fear आपका inferiority का, हर चीज का, एक societal pressure का, family का. So it's there, it's at every level. आपने सोसाइटी के फियर से, अपनी फियर से लड़के आप सिस्टम के पास भी चले गए. सिस्टम इज करप्ट, it will again suppress you. No, so it is started from home. That's the irony. It is started from our home. अभी हम लोग 3-4 दिन पहले एक जगह बारबेक्यू में थे और ऐसी बात निकली तो एक 12 साल का लड़का, उसकी छोटी 8 साल की बहन, और हम लोग बात कर रहे थे ऐसे कि यहाँ पे लड़कियों के मतलब बच्चों को हर चीज सिखा दी जाती है, 5th क्लास से शुरू हो जाती है टीचिंग. तो हम ऐसी बात करते करते, मेरी एक दोस्त है वो बोली कि मेरी बच्ची 8 साल की है, मेरा बेटा 12 साल का है, लेकिन दे नोज एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग. बोली मेरी बच्ची को पता नहीं क्या सूझा, उसने मुझसे पूछा कि पीरियड क्या होता है. इससे पहले कि मैं जवाब दूं, उसके भाई ने उसको समझा दिया बैठ के कि क्या होता है पीरियड. That's a good thing. We need to. तो यहाँ पर That's a very good thing. वहाँ पर नहीं है. Open ये conversations हो, घर में हो, that it's okay to talk about it. Why is it taboo? Why you can't talk about period? That's a very basic thing. That's a natural thing. If you can talk about periods, then you can talk about all these things. Absolutely. I just want to add to something what Ritu's trying to say, and I think she's bang on a point that, you see, the problem is that sex has always been a taboo in our society, right? Even in married couples. So the moment you make it a taboo, there's a fear which is coming along with it. True. And the male psyche plays on that fear. So it's not that they don't, because उनको भी पता है कि इसको तो कोई support नहीं करेंगे. Okay, that's one thing. Secondly, जो चीज आपको भूख लगती है आप खाना खाते हो, भूख एक किस्म की नहीं होती है ना. So if it is considered as a hunger, why won't you tell a child right at the moment? This is all a part of necessities. We need it, and that's exactly. एक normal way से भी उस चीज को आप समझा सकते हो जो नहीं समझाया जाता है. There are loads of schools which has opened up sex education, and the parents have taken out children from that school. Because ये सब बातें नहीं जाननी है. बिल्कुल, absolutely. So if you look at it that way, then we go back to another thing that we need to educate ourselves. That तो especially हमें अपने लड़कों को समझाना है क्योंकि एक strong father ही fight कर सकता है. नहीं, I'm sorry राजिया जी, औरतों को भी उतना ही समझना है, क्योंकि जब वो औरत शादी होके मदर हो जाते हैं,
वही फिर जाके उसी लड़के की मदद करते हैं वजह की अपनी बेटी की। हाँ, लेकिन अभी जो तक प्रॉब्लम ये है हमारे ना कि वो पैट्रियार्की हमारे खानदानों में, हमारे समाज में चली आ रही है। That is what I'm saying, that needs to be changed. Yes. Also, the point is, when a child is, forget about child. Hmm. I doubt that how many girls, even in today's world, when she's getting married, before marriage has an open talk with the mother about sex, or where the mother comes and tells. That is why we have domestic rape in our society, and it is not counted as a rape in the legal system. Exactly. ओके, सो राहत, आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और इतनी खूबसूरत फिल्म बनी, आप मुझे बताएं, फिर मैं जो अब तक हम नहीं देखे हैं। अरे सच्ची में क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये बहुत दिनों से हमें गोलियां दे रहा है कि देखेंगे, वो करेंगे, हमें पता नहीं है अल्टीमेट क्या हुआ है। बिल्कुल नहीं दिखाई गई है, बिल्कुल नहीं भाई, दिखाइए, राहत क्या कर रहे हैं आप, दिखाइए सबको फिल्म। मैंने भी नहीं देखी है, डोंट वरी। ठीक है, सब लोग फिर आप आइए और IIRB में देखिए। सो राहत प्लीज। यस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडिया जब आया था, बस जब कृतिका ने आइडिया सुनाया था, तो उसी मोमेंट पे ये आइडिया हमको बहुत इम्पोर्टेंट लगा था, और हम लोगों ने एज अ फिल्म मेकर ये पहले भी कोशिश की, इसके पहले की जो हमारी फिल्म है, लिहाफ है या मंटोस्तान की, जितनी भी, तो हमने कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज को टच करने की कोशिश हमेशा की है, चाहे वो थ्रू लिटरेचर बेस्ड फिल्म्स हो या फिर मेरे हिसाब से फिल्म मेकिंग जो है वो दो तरह का लिटरेचर होता है, या तो एक जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर आपको बुक्स से मिलता है जो आपको इंस्पायर करता है, या फिर वो लिटरेचर जो आप खुद क्रिएट करते हो जो आपकी सराउंडिंग में होता है। सो मुझे लगा कि ये बहुत पावरफुल स्टोरी है, एंड देयर वाज एन अर्ज टू टेल दिस स्टोरी टू द वर्ल्ड, बिकॉज द इम्पोर्टेंट पार्ट इज नॉट दैट दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ रेप स्टोरी, बिकॉज रेप तो हम लोग अक्सर सुनते आए हैं, और ये बहुत ऐसा टॉपिक भी लगता है कि people don't want to talk about it and all, but the best part is about this girl Honey who stands for her justice. जब एक पॉइंट आता है फिल्म के अंदर when even her parents are tired, जब उसकी माँ कहती है कि छोड़ देते हैं, let's get rid of this, चलो कोर्ट से वापस वो ले लेते हैं, कहीं जाके उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं, तब वो she takes a stand and says कि नहीं, अब इतने आगे आ गई हूँ तो अब मुझे जस्टिस चाहिए। And the other thing which is very important है, जो शायद luckily हमारे साथ कुछ एक फिल्मों में रही है, लिहाफ was all women film, and me being a male making it again, this is the all women film, मतलब ये पूरी औरतों की फिल्म है जिसमें it has women power, it has women's vulnerability, it has all the emotions of women, but at the same time being a male you bring the emotions as a father, as a brother, as a responsible male member. So ये बहुत important था, और मुझे जैसे ही ये कहानी सुनी मेरे माइंड में सबसे पहला जो कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर को लेके, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है, कोई 16-17 साल की लड़की इसको कैसे पोर्ट्रे करेगी, दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, और मेरे माइंड में सबसे पहला नाम ही अनुष्का आया। आई थॉट कि आई विल डिस्कस दिस स्टोरी विद हर, एंड इफ शी एग्रीज I'll take this further, because इसके पहले हम लिहाफ पे काम कर चुके थे, और वो भी काफी पेचीदा किस्म का कैरेक्टर था। तो जब मुझे आज भी याद है फर्स्ट मीटिंग में when I spoke to her and her father together, so it was a challenging role, for a girl, and narrating such kind of story to an actress when her father is sitting, but Anushka's father has been very supportive, or I really want to share that ये अनुष्का के 12th के एग्जाम्स के आसपास का टाइम था when she had 12th exams, and मतलब it was पढ़ाई करती थी, और ये होता था कि मतलब मेरे लिए ये चैलेंजिंग था कि इसको हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि मैं और अनुष्का के फादर हम लोग ये डिस्कस करते थे कि ये इतना ट्रॉमा में ना चली जाए, या इतना उस कैरेक्टर, क्योंकि बहुत ही क्या कहते हैं डिमांडिंग कैरेक्टर था। आपको एक बार आप उसमें चले जाते हो तो कभी क्या होता है कि आप घर पे जब रात को पैकअप करके जाओगे तो आपका पढ़ने का मन नहीं होगा, आप उसी में रहोगे। सो वी यूज फ्यू टेक्निक्स विच जिसको जो कहीं ना कहीं ईरानियन फिल्म मेकर्स या मेरे कुछ friend Afghan Iran filmmakers, they used to tell me how they will get you in the character and they'll bring you out without even, sometimes they don't tell you as an actor कि इसके आगे क्या होने वाला है,
तो वो इंटेंशनली हम ऐसा करते थे कि सब लोग मिल के, वी हैड लाइक पीपल लाइक नीलू जी एंड स्वरूपा जी, पंकज, एवरीबॉडी सीनियर एक्टर्स, so we used to create that माहौल and then bring her out. जैसे ही सीन खत्म हो गया तो कुछ मजाक छेड़ दो, कुछ कर दो, so that वो उससे निकल भी जाए. So it was difficult. I think Anushka would like to share something. बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ना अनुष्का के फादर से बात की. अगर आप अनुष्का की अम्मी से पहले बात करते तो फिर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती कि आपने अम्मी से क्यों बात की, अनुष्का के फादर से बात क्यों नहीं की इस रोल के बारे में, क्योंकि यू हैव टू बी ओपन इफ यू आर गोइंग टू मेक दैट काइंड ऑफ फिल्म. सो बट यस, इट्स इम्पोर्टेंट. अनुष्का डार्लिंग, फिर मैं आपके पास आऊंगी और आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से लड़कियों को ब्लेम किया जा रहा है टुडेज लाइफ में, एज द गर्ल्स जो आपकी एज की हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है और आप उनको क्या एक लेसन देना चाहती हैं इस फिल्म को करने के बाद? इट्स वेरी अपसेटिंग. मतलब जिस हिसाब से ब्लेम किया जाता है लड़कियों को, हम इसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं और रियलाइज कर रही हूँ कि इस कैरेक्टर में जब मैं कर रही थी, ये कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही थी, तो मुझे बहुत कुछ रियलाइज हुआ जो मुझे पहले नहीं पता थी. मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे लोग कितना अनसपोर्टिव हो जाते हैं कुछ लोग, एंड स्पेशली क्योंकि हमारा कैरेक्टर मिडिल क्लास का था, एंड उनके पास उतने मतलब फाइट करने के लिए बहुत टाइम पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि लॉयर का हायर करना, कोर्ट में जाना कंटिन्यूअसली, एंड बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होती है जो फैमिलीज कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाती हैं. फॉर्चुनेटली इसमें हमने दिखाया कि कैसे वो सपोर्टिव है, एंड आई रियली होप कि जैसे हमारी फिल्म में हनी को एक इतनी अच्छी लॉयर मिली, वैसे ही जो जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, आई रियली होप कि अगर एक भी ऐसे सपोर्टिव कोई इंसान को मिल जाता है ना, आई थिंक वो करेज अपने आप आ जाती है. माय मैसेज टू ऑल द गर्ल्स और एनीबॉडी हु इज फाइटिंग फॉर देयर राइट इज डोंट गिव अप, नो मैटर व्हाट हैपेंस. अपने जस्टिस के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन. आपको कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, सोसाइटी आपके अगेंस्ट चले जाए, फैमिली आपके अगेंस्ट चले जाए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट गिव अप. एंड आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि इस फिल्म से हम यही दिखा रहे हैं. जैसे सर ने कहा कि हमारा एक सीन भी है जिसमें सब थक जाते हैं क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है. आफ्टर अ पॉइंट आप देखोगे कि होपलेस लग रहा है सब कुछ, सबके करेज टूट रहे हैं, बट हनी गिव अप नहीं करती है. उसकी फादर कितने सपोर्टिव है. सो आई रियली होप दैट पेरेंट्स सपोर्ट करें अपने बच्चों को. बच्चे, I think it's very important to be friends with your, parents. I am very close to my dad. I am very close to my mom. I share everything with them. And I think that is the reason they are my strength. And I have the courage to fight for myself, fight for anything today. So all the kids, please be, open with your parents and never, never, never give up. Absolutely, very good. Thank you so much for sending this message to young generation. Being a woman, and there is a women power out there, और ये फेस्टिवल 12 women ही रन कर रही हैं since last 4 years. कोई इसमें मैन का कुछ लेना देना नहीं है. तो इतनी सारी विमेन पावर मौजूद है और हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि फाइट जरूर करनी है. लड़की को भी खड़ा होना है, पेरेंट्स को भी उसके साथ देना है, खड़ा होना है. और साथ साथ आप यहाँ जितनी भी विमेन हैं जो भी जवाब देना चाहे इनका, और सब अगर एक मिनट में जवाब देना चाहें कि जो भी बेबी, अगर इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट, जो भी बेबी आ रहा है दुनिया में, क्या उसको आना चाहिए या उस लड़की को एबॉर्शन का एट वेरी फर्स्ट स्टेज एबॉर्शन का कुछ कानूनी हक हो. ये आप विमेन मुझे बताएं. अनुष्का, लेट्स स्टार्ट विद यू एंड देन फिर सब एक मिनट में मेरे को जल्दी से बता दें. मेरे हिसाब से एकदम राइट होना चाहिए लड़की पे, लड़की का डिसीजन होना चाहिए क्योंकि वो खुद की बॉडी जैसे हमने इस फिल्म में कहा भी है, डायलॉग्स भी ऐसे कि ये मेरी बॉडी है, मेरा डिसीजन होना चाहिए. तो आई रियली होप कि हमें वो लॉ सपोर्ट करे. हमारी राइट होनी चाहिए कि हमें अबॉर्ट करना है या रखना है. सो आई रियली होप कि ऐसा लॉ बने ताकि इतना करेज हो फैमिलीज में, लड़कियों में, कि वो अपने जस्टिस के लिए लड़ पाए. Absolutely. Neelu, as a mom? Yeah, absolutely.
लड़की के पास ये बिल्कुल राइट होना चाहिए कि उसको बच्चा रखना है, स्पेशली अ रेप विक्टिम. Why would she want to keep a child of, which is the fruit of a rape? What's the point bringing such a soul in the world? Yep. Not at all. Or thankfully, I think if I'm not wrong, Raj will correct me. After this incident happened with the girl in Chandigarh, I think ये law बन गया है कि rape victim can get rid of the. I won't even call it a baby. It's a fetus. Exactly. It's a result of very, very. It's a result of a crime. Absolutely. And Absolutely. a rape or not rape. Absolutely. Not a rape and one gets pregnant. It has to be a woman's right. वो रखना चाहिए. बिल्कुल. सौरभ जी आपका क्या कहना है इस पर? भगवान की देन और ये सब वो पुरानी बात हो गई, खत्म करते हैं उसको. सौरभ जी आपका क्या कहना है? The choice should be of the person. Yes, of course. Absolutely. पर हाँ, मैं ये भी समझती हूँ कि एक बच्ची जो जैसे 13 साल की बच्ची का वो सोच भी उतना क्लियर नहीं हो सकता है always, right? But इसीलिए बार-बार बोल रही हूँ. हाँ, तो इसीलिए it is also important to have the support of the society. मुझे सबसे बड़ी बात लगता है कि ये जो stigma regarding rape जब चले जाए हमारे अंदर से, तो आई थिंक इट विल बी इजियर. बिल्कुल. मोनिका आपका क्या कहना है इस पर? Obviously, like every woman should have that कि अपनी body, and we should just have that in us कि हमें abort करना है या baby रखना है. And especially for a rape victim, there's no question. And like Anushka said that, she's got the strength from her parents, that she's close to them and she can discuss anything. But in India, we still have a lot of parents who don't support their daughters. And they're scared to even, tell about school में क्या हो रहा है, बस में क्या होता है उनके साथ, सड़क पे क्या होता है उनके साथ. So parents don't even know कि उनके साथ चल क्या रहा है. Absolutely. So ऐसे cases में, yes, I mean, it's like your body and you have the full right. Full right. Zeba? Yeah. I totally agree with all women. I totally agree with Neeli, what she said, because it's completely, a girl's right. And secondly, if she is raped, it's no point of keeping the fetus, because it's being forced. It's a forced thing to a woman. Correct. So I completely agree to her. Okay, Pooja? Yeah, absolutely agree with the majority. It is the woman's right, choice to keep or not keep the baby. In a rape case, there's no question that she should be forced to keep the baby. Secondly, for an underage, there should be a law that it's unhealthy to even bear the delivery pain or even carrying the baby for 9 months. I don't think it's advisable scientifically. So there is no question about whether she should keep or not. It should rely so much on the health aspect. It should rely on the science of the body of a 14-year-old, whether she can take it or not. And the law should say she should not take it in her own interest. So सवाल ही नहीं पैदा होता. Of course, अगर like Anushka is close to her parents, but Monica is right कि काफी ऐसे families हैं जो बहुत strict हैं. वो अपने बेटियों को बर्खास्त कर देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि एक तो एक गलती की ऊपर से there's another मुसीबत coming. In that case, the court of law needs to support the best in interest what is for an underage child who is pregnant and now because of rape. So इसमें parents अगर support करे ना करे, you have to stand up for yourself. The law should support scientifically. Correct. So Ritu, your closing remark on it? Yeah, I totally agree with the Pooja that there should be a system. If she doesn't want to keep the baby, the legal system is not stopping her कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, ये गलत है. Why is that wrong? Because I totally agree with Pooja what she said. Okay, so we have men's here. If somebody committed this kind of stupidity, आपका उन बंदों के लिए क्या रिएक्शन है और उनके लिए क्या सजेशन है? कोई ऐसी चीज जो परफॉर्म कर सकते? But I don't think it's stupidity, it's a crime.
It is a crime. Yes, yes. I am taking my words. I am taking back my words. Let's say कि हाँ, इस crime के लिए आप क्या suggest करोगे boys को? Anyone can, राजीव, आप शुरू करें. बिल्कुल मैम, there should be strict laws, क्योंकि लॉ के बगैर तो किसी को अगर कोई लेसन समझाना There are laws, मगर वो कहाँ मानते हैं? मैम इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं. अब अगर ऐसा जैसा कोई केस है, बीइंग फादर, बीइंग इंडिविजुअल, मैं तो चाहूंगा उसको चौराहे में खड़ा करके गोली मार दूं, वहीं पे फांसी पे लटका दूं, बीइंग फादर. ठीक है. दूसरी चीज ये मैम कि सोशली क्या होता है कि जैसे सभी लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ये स्टिग्मा है, ये माइंडसेट है, और माइंडसेट हम एक ऐसे देश में रहते हैं, वी हैव प्लेंटी ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज विद देयर ओन परसेप्शंस. तो वो क्या है कि अपनी अपनी सोच है. जो कन्याकुमारी से लेके अगर हम कश्मीर तक जाएंगे तो वो हर एक सोसाइटी की अपनी अपनी सोच है, समझने की, चीजों को हैंडल करने की, टैकल करने की. लेकिन ओवरऑल इन सब के ऊपर लॉ है, और लॉ अगर स्ट्रांग नहीं होगा मैम तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है. हम अपनी फिल्म्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू एजुकेट करते रहेंगे, वो एक सेपरेट हमारा टारगेट रहेगा, बट देयर शुड बी अ लॉ. और ऐसा लॉ होना चाहिए कि एक बार अगर देयर आर लॉज, सी अभी निर्भया के लिए 12 साल के बाद भी एक विक्टिम को, एक अक्यूज को जो है वो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो माइनर है. आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि इफ ही इज अ माइनर हाउ कैन ही कमिट दिस काइंड ऑफ he might as well take the punishment also, no? Not only that, the point is the law itself has a lot of loopholes. Exactly. That's what I'm saying. और laws तो जो करेंगे वो करेंगे, but I think women जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई है. मैं एक मिनट लेना चाहता हूँ. जी तारिक, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली जब बच्चा आपके घर में पैदा हो, सबसे पहला औरत जो हमारी माँ, हमारी बहन, उसका फर्ज है उसको ये बताना बच्चे को कि बहन की इज्जत, बेटी की इज्जत कैसे की जाती है. ये एक औरत का फर्ज है. जिस दिन वो अपने बच्चे को नहीं, मैं एक्चुअली मैं कोई औरत के ऊपर वो नहीं कर रहा. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे और माँ के बीच में जो रिलेशन होता है, मुझे नहीं लगता है शायद वो फादर के साथ होता है या किसी और के साथ होता है. तो जिस दिन हमारे घरों से बच्चे को ये चीज समझाई जाएगी कि औरत की इज्जत क्या चीज है, तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे ये लगता है कि उस दिन उसको समझ आ जानी चाहिए कि एक माँ, एक बहन, जो औरत है वो तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, उसकी कदर करना सीखो. उस दिन से शायद कि बहुत सारी चीजें, जैसे अभी लॉ की बात करते हैं, मुझे लगता है कि लॉ भी सेकेंडरी चीज है. लॉ तक पहुंचते पहुंचते शायद तो उसका माइंड सेट जो है ना, जब अगर हम माइंड सेट की बात करेंगे तो माइंड सेट आपकी वो एक टाइम, माइंडसेट का एक टाइम होता है. जब तक आपका बच्चा 10th तक आता ना, तो उसके घर से उसको क्या मिल रहा है, उसकी फैमिली से उसको क्या मिल रहा है. मैं स्पेशली इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ मदर का, कि मदर और बच्चे के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो किसी के बीच में नहीं होता है. और वो जब अपने घर से उसको एक 10-15 साल तक जो लेसन मिलेगा, वो कोई लॉ, कोई कानून, कोई सोसाइटी उसको नहीं दे सकती है. ये बहुत ही जरूरी है. सतीश आप बोलेंगे? ज़ेबा कुछ कहना चाहती है. जी एक्चुअली आई जस्ट वांट टू से कि बिकॉज़ बहुत सारे सोसाइटी में, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूपी वगैरह साइड में, जो मैंने देखा है लेडीज ही घर की, सॉरी टू से, नहीं अपने घर में मतलब लड़की और लड़के में डिस्टेंस और वो फर्क बताना शुरू से शुरू कर देती है कि ये लड़का है, he has the rights to do, and लड़की है, you can't do this. That's exactly what I was saying. Yep. सतीश आपका कोई एक लफ्ज, आपका कंक्लूजन, फिर हम पंकज जी के पास जाएंगे. हम लोग 1 घंटा हो चुका है हमें. जी जी हेलो. जी हाँ जी, हमें ना हाँ, ये एक्चुअली माइंडसेट होता है किसी का, ये चेंज करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है. मतलब किसी ये पहले से ही जैसी परवरिश हो, जैसा उसका रहन सहन हो, ये वो डिपेंड करता है कि उसका कैसा है, क्या करना है उसको आगे. क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्राइम होते हैं, सिर्फ रेप नहीं है, उसके बगैर भी बहुत सारे मर्डर हो. ये उसका पहले से परवरिश होता है कि उसने आगे जाके क्या करना. उसका माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर हम सब साथ होके मतलब करें तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है.
बिल्कुल हो सकती हैं। पंकज जी आपका आखिरी जुमला, उसके जी बाद फिर हम जी, खत्म करते हैं। जैसे राजीव जी ने कहा कि लॉज तो बने हुए हैं, जैसे निर्भया के केस में भी आज आपने भी बोला कि छोड़ दिया गया और पनिशमेंट भी मिली, कैपिटल पनिशमेंट भी। आई थिंक फांसी देने से, इंसान को फांसी देने से, एक जो क्रिमिनल है जिसने वो मतलब विक्टिम नहीं है, जिसने वो कमिट किया है मतलब क्राइम, आई थिंक उसको 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 फांसी देने से कुछ नहीं होगा। उसको फांसी देने से क्या सोच मर जाएगी? सोच तो नहीं मरेगी ना, सोच को फांसी देना जरूरी है। और वो सोच को फांसी उस हिसाब से जी सकते हैं जैसे बचपन से ही मतलब लड़कों को उस तरीके की तरबियत, जैसे मैंने पहले ही बोला, एक समाज को परवरिश, उस तरह की परवरिश की जरूरत है। जैसे लड़कों और लड़कियों में शुरू से ही मतलब डिफरेंस बता दिया जाता है कि लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगा, नहीं, दोनों को बराबर का रखना जरूरी है। और सोच को फांसी देना जरूरी है। ये जो सोच हमारे समाज में उभर गई है ना, इस सोच को खत्म करना, इस सोच को मारना बहुत जरूरी है। और आई थिंक एम आई नेक्स्ट जैसी और भी कई सारी फिल्म्स बने जिससे समाज को मतलब आईना दिखाया जा सके कि ये बेहतर समाज है, ये समाज नहीं है जो अभी जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में। तो मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। इट इज रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक ऑन सच टॉपिक एंड मैं सिर्फ इसी बात पर अपनी बात खत्म करूंगी। और आज का हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट नियर फ्यूचर में हम 1-to-1 बात करेंगे इस पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं जाने से पहले कहना चाहूंगी कि इस सोच को सिर्फ माँ बदल सकती है, ओनली माँ। वो अगर ठान ले कि मेरे को चाहे कुछ हो जाए, मेरे घर में जो लड़की लड़का है वो मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरा लड़का या मेरी लड़की नहीं है, वो मेरी औलाद है। और उसकी परवरिश पूरी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से एक की हो रही है। अगर बच्चा, लड़के को आप इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं और लड़की को खाना पकाने के लिए उर्दू मीडियम में भेज रहे हैं, तो वो अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। दोनों बच्चे जाएंगे, सेम स्कूल में जाएंगे, सेम खाना पीना खाएंगे, एक के लिए कमरा है, दूसरे के लिए भी कमरा हो। तो उस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, दिस कैन बी चेंज इफ जिस दिन माँ ये तय कर ले कि मेरे को ये करना है। और हम फिर यही कहेंगे कि प्लीज जो माएँ उधर हैं जो सुन रही हैं हमें, वो अपने और अपनी औलादों को टेक केयर करें, क्योंकि माँ बेटे की आप सब जानते हैं, एज अ बीइंग अ मैन, आप जानते हैं कि अगर आप ना भी चाहें और अगर माँ ने मना कर दिया नहीं करो, तो अगर आप वो गलती कर भी रहे हो तब भी आपके दिल में छुपती है कि यार माँ ने मना किया था, मैं फिर भी कर रहा हूँ। तो ये जो एक बॉन्डिंग है माँ और बच्चों की, ये बड़ी कुदरती है, जिसको हम लोग यूपी वाले कहते हैं कि नाल से नाल जुड़ा हुआ होता है। तो ये नाल से जुड़ी हुई फीलिंग्स होती हैं और माँ इसको चेंज कर सकती है। दैट्स माय थिंकिंग। तो बस इसी के लिए योर थिंकिंग इज राइट। बहुत अच्छा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड विशिंग यू ऑल वेरी विशिंग यू ऑल फॉर द फिल्म कि वो बहुत अच्छी जाए, सब लोग उसको देखें, कुछ सबक हासिल करें। एंड प्लीज आप लोग राहत भाई सबको फिल्म दिखाओ। आप क्या कर रहे हो?